Students, I'm Shasethia and I'm your social science teacher. Today we are going to study social science civics chapter number 2. Name of the chapter is Diversity, Prejudice and Discrimination of class 6th. Okay, so in last chapter we have studied about diversity and different kinds of diversity. Now sometimes diversity leads to prejudice and discrimination, and how we will be going to study this in the following chapter. Now in this chapter the key points which you are going to learn is about the stereotype, prejudice and discrimination, and the different reason that leads to inequality in India, and how our constitution has provision to deal with inequality. So let's start. Prejudice and stereotyping. Prejudice and stereotyping. It is necessary to understand what prejudice is, how it can lead to discrimination, and how it can be avoided. Now, to understand what is prejudice, we need to अंडरस्टैंड दैट हाउ इट कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, और प्रेजुडिस के कारण कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है. सो मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस इज प्री कंसेप्ट ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ रीज़न. नाउ ऐसा ओपिनियन जो किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण नहीं हो, लेकिन हम उसे मानते चले आते हैं. जैसे कि अक्सर कहा जाता है दैट गर्ल्स आर वीक, राइट. सो ये क्या है, एक प्रेजुडिस है. और हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, एक अपना बिलीफ. प्रेजुडिस इज, एज द नेम इम्प्लाइज, द प्रोसेस ऑफ प्री जजिंग समथिंग. इट मीन्स दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्री जजिंग समथिंग, किसी को जज करना, राइट. अ पर्सन इज सेड टू बी prejudiced if she or he develop a attitude towards a person or a group of person without having enough or correct information about them. prejudice कब कहा जाता है, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, ही और शी कोई भी हो, वो एक एटीट्यूड डेवलप कर ले किसी पर्सन के लिए या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, और उसके बारे में ना ही उसे कुछ पता है, ना ही कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल देयर ओपिनियन अबाउट द ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ डिफरेंट. प्रेजुडाइज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. प्रेजुडिस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. आपका ओपिनियन किसी को लेकर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. अ नेगेटिव प्रेजुडिस लेड टू द हॉस्टाइल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पर्सन और ग्रुप. और जब ये प्रेजुडिस नेगेटिव होता है, इसके कारण कुछ वी कैन से कुछ एग्रेसिव एटीट्यूड किसी पर्सन और ग्रुप के लिए पर्सन के अंदर ग्रो होने लगता है, राइट. नेगेटिव ओपिनियन अगर किसी के पर्सन के लिए है तो उसके कुछ हॉस्टाइल एटीट्यूड्स होंगे. While a positive prejudice can result in an attitude that favors a person or group unduly. और अगर ये prejudice पॉजिटिव है तो आपका एटीट्यूड कैसा चेंज होगा, आप कंटिन्यूसली उस ग्रुप के या पर्सन के फेवर में बोलोगे, राइट. सो prejudice कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. Positive prejudice leads to favor a person or a group unduly, and negative prejudice leads to the hostile attitude towards a person or a group. Negative attitude towards a person or a group, right. Prejudiced person believe that his her own group is somehow superior to another group. अब prejudiced person क्या सोचेगा कि हमारा जो ग्रुप है या हम जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हम सुपीरियर है, हम अच्छी पोजीशन में फ्रॉम अदर ग्रुप, राइट. दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस्ड. Prejudices emerge out of ignorance and stereotyping when we judge other people through pro-conceived notion about them. नाउ प्रेजुडिस कैसे इमर्ज होता है, इमर्ज्ड आउट कैसे निकल के आता है, आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को इग्नोर करने लगोगे या उसके लिए एक स्टेरियोटाइपिंग बना लोगे, मतलब एक ऐसी सोच बना लोगे दैट यू वॉन्ट
you don't want to listen to that person or a group of people, and you judge other people through your beliefs and your opinion. Suppose if a person, for example, in racial prejudice, one group of people believe that other group of people are inferior simply because of their skin color. अब it can be on the basis of skin color. ये जो racial प्रेजुडिस है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं जस्ट बिकॉज हम फेयर स्किन है, हमारी स्किन फेयर है, और वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी स्किन ब्लैक है, द ब्लैक पीपल आर inferior to us. So it's a kind of prejudice, right? In social class prejudice, one set of people believe themselves to be better than other. और social class prejudice क्या होता है? People believes that they believes themselves to be better than other. वो ये मानते हैं कि हम दूसरों से better हैं because of the part of town they live in. या ये बोल सकते हैं कि वो जिस टाउन के पार्ट में रहते हैं वो सभी लोग सुपीरियर हैं, और उसके अलावा जो लोग टाउन के उस एरिया में नहीं रहते हैं वो इंफीरियर हैं. सिमिलरली वी कुड बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन. और ये जो प्रेजुडिस है ये इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे भी हो सकती है, रिच और पुअर, राइट? जैसे कि rich group of rich people can think that we are superior from the poor, or the poors are beggars or something like that, right? So ये क्या है? एक prejudice है जो उन्होंने अपने around set किया है. और it can be on the basis of religious belief of a people, race of a person, region to which person belong, differently abled person, etc. और ये प्रेजुडिस किसी भी बेसिस पर हो सकता है. आपके इकोनॉमिक स्टेटस जैसे कि रिच पुअर, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, देन ओरिजिन के बेसिस पे कि आप कहाँ से आपका ओरिजिन है, या किस रीजन से आप बिलोंग कर रहे हो उसके बेसिस पे हो सकता है, या डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं उसके बेसिस पे. और भी बहुत तरीके से आप प्रेजुडिस अपने माइंड में या अपने ओपिनियंस या अपने बिलीव्स को क्रिएट कर सकते हैं. Prejudice is harmful as it hurts the feeling of other. Now prejudice is harmful since इसके कारण जो लोग हैं जिनके साथ प्रेजुडिस किया जाता है या जिनके लिए ये ओपिनियंस और बिलीव्स बनाए जाते हैं, उनके फीलिंग्स को क्या करता है? हर्ट करता है, उनकी डिग्निटी को हर्ट करता है. इट मे लीड टू टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, कॉजिंग डिसयूनिटी और डिसहारमोनी इन द सोसाइटी. जिसके कारण टेंशन अराइज हो सकती है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में, और डिसयूनिटी हो सकती है, अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट एंड डिसहारमोनी, जहाँ पे लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते हों. सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. Racial prejudice leads to racial ignorance, arrogance, and discrimination. Prejudice results in hostile action and prevents relationship from developing. प्रेजुडिस का रिजल्ट कुछ हॉस्टाइल हो सकता है, डेंजरस रिएक्शंस हो सकते हैं. इसके कारण जो रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप अगर डेवलप हो रही है तो वो नहीं हो सकती है. अगर एग्जाम्पल लें जैसे कि रिच और पुअर का, सो रिच विल थिंक दैट आई एम सुपीरियर, सो ही विल नॉट डेवलप एनी फ्रेंडशिप विथ poor person, a person who belongs to lower economic status, right? It also obstructs open minded and tolerant thinking. और इसके कारण जो ओपन माइंडेड और टॉलरेंट थिंकिंग के लोग होते हैं उसे भी ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. We must work hard to avoid prejudging and form intelligent opinion since our opinion affect the way we behave. Now हमें हमेशा ये अवॉइड करना चाहिए कि हम पर्सन को पहले से जज करें, प्री जज करें, और एक इंटेलिजेंट एक एक्सपर्ट ओपिनियन बना लें दैट द पर्सन बिलोंग्स टू दैट एरिया और टू दैट स्टेटस इज़ not good,
और आर नॉट गुड. सो ये क्या है, इन ओपिनियंस के कारण सोसाइटी में डिसयूनिटी स्प्रेड होती है. नेक्स्ट इज स्टेरियोटाइप. Stereotype. In order to understand prejudice, we will have to understand what stereotypes are. Given below are two cases of stereotypes. Let us see what they tells us. Now there are to understand prejudice, there are two case studies of stereotype. Let's see what they tells us. Kiran, a student of class 6th, is having trouble in maths class. She keeps going for extra class, but her grades are not improving. Her brother, from whom she sought help, tells her it's okay because girls are usually not good at maths. Now, in second case, Lena belongs to a smaller locality than Madhu. On being invited to her brother on her birthday party, Madhu refused, thinking Lina's house would be messy and dirty. But after the party, all friends praised Lina's house and food. Do you think Kiran's brother was correct in telling her that girls don't do well in maths? How do you think Madhu would have reacted after her friends praised Lina's party? In the given cases, if you find there is some kind of fixed notion about a particular gender or social group in the mind of some people. Now, about the cases shows that there is a fixed belief about a gender, that is about Kiran or about Lena, right? So this is called prejudiced, right? They judge these people on the fixed criteria, और इसके अंडर prejudice के अंडर लोगों को जज किया जाता है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में. जैसे कि किरण को जज किया गया था एज अ गर्ल, बिकॉज जनरली गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स. एंड सेकेंड केस में हमने देखा है अबाउट लीना, जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ स्मॉलर लोकेलिटी, राइट. और उसे अपनी लोकेलिटी, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या किया गया, जज किया गया. सो दिस टाइप ऑफ judging or prejudging the people is called prejudice. Now, on the other hand, stereotype क्या होता है? Stereotype is thus a mental image of group based on opinion without regards of individual difference. Now, stereotype एक ऐसी mental image है जो किसी particular group के लिए बन जाती है, right? और इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं. जैसे several example of stereotype can be found around us. For example, when a girl is expected to play with doll and learn to cook, wash and clean when she grows up, and boy is expected to play with cars and become the breadwinner of family when he grows up, then we are creating gender stereotype. Now, stereotyping क्या है? किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इमेज, मेंटल इमेज क्रिएट कर लेना. जैसे फॉर अ मेंटल इमेज फॉर अ बॉय एंड अ गर्ल. ग्रोइंग अप ऑफ अ गर्ल मीन्स शी मस्ट नो हाउ टू कुक, हाउ टू वॉश, क्लीन, और शी इज आस्क्ड टू कुक फूड, क्लीन डिशेस, वॉशिंग क्लॉथ्स और यूटेंसिल्स, प्लेइंग विद डॉल्स. ये क्या है? एक स्टेरियोटाइप है, राइट. ऑन द अदर हैंड, स्टेरियोटाइप फॉर बॉयज इज playing with car, or breadwinners. It means the, we can say, offsprings, or here breadwinner means a person who, or a boy who is asked to earn money and support family when he grows up. So ये क्या है? एक stereotype बना लिया गया है कि गर्ल्स को हाउस होल्ड के काम करने हैं और बॉय को मनी अर्न करनी है और फैमिली को सपोर्ट करना है. सो इट इज़ अ जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर के बेसिस पर स्टेरियोटाइप है. This means we believe that the girl or a boy can do only things certain types of task. इसका मतलब क्या है कि हमारा ये मानना है कि बॉय इस टाइप के टास्क करेंगे और गर्ल
पर्टिकुलर टाइप के टास्क करेंगी. हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द गर्ल्स और ऑल द बॉयज़. लेकिन ये सही नहीं है, ये सच नहीं है सभी बॉयज़ और सभी गर्ल्स के लिए. As we can observe in recent time, both men and women can earn and support their families, and both can also be good at household work. लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम है इसमें हम देख सकते हैं कि बोथ मैन और वुमेन दोनों ही अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, और समटाइम्स मैन भी जो होते हैं वो भी हाउस होल्ड के काम में अच्छे होते हैं. Stereotype also exist for people belonging to a particular region, religion, race, economic background और physical disabilities. अब ये स्टेरियोटाइप जो हमने देखा था वो जेंडर के बेसिस पर था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेरियोटाइप एग्जिस्ट करते हैं. वो एक रीजन के बेसिस पे हो सकते हैं कि वो उस रीजन से बिलोंग करता है, या किसी रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है, रेस के बेसिस पे मतलब प्लेस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे, उसके स्टेटस के बेसिस पे, या उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पे भी हो सकता है. स्टेरियोटाइप हर्ट्स द इमोशन ऑफ द पीपल. दे कैन have a lasting and damaging impact as they prevent us from appreciating unique quality of an individual. Now stereotype के कारण लोगों के emotions जो होते हैं वो hurt होते हैं, और इसके कारण उनका जो डैमेज होता है वो ज़्यादा हो सकता है. मतलब उनकी जो इमोशंस जो हर्ट हुए हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, राइट, डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन की जो यूनिक क्वालिटी है उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं. इम्प्रेशंस get created about a large number of people in relation with set pattern and attributes. और हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही पैटर्न में, एक ही एट्रीब्यूट के अंदर जज करते हैं. सपोज जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था गर्ल के लिए, तो ये क्या है, एक हम किसी एट्रीब्यूट को ले लिया जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और उसके अंडर हम सारी गर्ल्स को क्या करते हैं, जज करते हैं, right? This impression then gets exaggerated and generalized. और इस तरीके से ये जो इम्प्रेशन है, ये जो हमारा बिलीफ है, ये थॉट है, ये एग्जैजरेट हो जाता है, मतलब और ज़्यादा बढ़ जाता है और जनरलाइज हो जाता है, लोग इसे मानने लगते हैं. Then this led to people identifying a community and its people with this attribute only. और फिर लोग इसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेसिस पे पूरी कम्युनिटी को जज करते हैं. स्टेरियोटाइप्स प्रिवेंट अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लेड टू प्रेजुडाइज. और स्टेरियोटाइप के कारण ही हम क्या करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं. इट मीन्स कि हम किसी इंडिविजुअल के जो क्वालिटी है उसे नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, मतलब जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा था गर्ल के लिए, तो हम उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे ही उस गर्ल को जज करेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि उस पर्टिकुलर गर्ल को पेंटिंग पसंद है या स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, राइट. एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम उसे जज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज.